इसका लेंथ हम लोग को मेजर करना है। ओके, सपोज वी ठीक है, सपोज वी वांट टू मेजर इट्स लेंथ, इसका लेंथ मेजर करना है। To measure the length, we need a scale. Okay, to measure the length, we need a scale. अच्छा, ये स्केल आप लोग जो बोर्ड में मैंने ड्रॉ किया, उसका स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है? जो स्केल मैंने बोर्ड में ड्रॉ किया, उसका सबसे छोटा डिवीजन कितना है? 1 मिलीमीटर। सबसे छोटा डिवीजन 1 मिलीमीटर। Sir, your voice is not clear, sir. Sir, voice is not clear, sir. अच्छा, ऐसा है क्या? आपका इंटरनेट एक बार चेक कर लीजिए। Yes, sir. बाकी सबको मेरा aside the blackboard the सर sound देखिए, goes सर आप जब कैमरा के सामने आते हैं ना तब आपका वॉइस क्लियर होता है, बट आप जब इधर उधर घूमते हैं तब वॉइस क्लियर नहीं होते, जब आप साइड में चला जाते हैं तब क्लियर नहीं होते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो जब मैं बात करूंगा आपको फ्रीज करके बात करना पड़ेगा। अभी तो आवाज ठीक है, ठीक ठाक आ रहा है? हाँ जी सर, एकदम सही आ रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो ये देखिए, मैंने जो स्केल यहाँ ड्रॉ किया, उसका सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना है? सर 1 मिलीमीटर। ये दिखाई दे रहा है स्केल, इसका सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना है? सर 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। अच्छा, इस स्केल से हम कोई भी चीज जिसका लेंथ 1 मिलीमीटर से नीचे हम माप सकते हैं क्या? इस स्केल से कोई भी चीज जिसका लेंथ 1 मिलीमीटर से नीचे है, कैन वी मेजर दैट वन? नहीं सर। No, we cannot. If any object whose length is less than 1 millimeter, then we cannot measure. So this 1 millimeter is the smallest length we can measure with an instrument, with this instrument. Okay. So the smallest division of a scale is called least count. Least count. Least count. Okay, so least count means the smallest division of a scale. Definition, you write the definition. Least count means the smallest division of a scale, or measuring instrument, of a scale or of a measuring instrument. Okay, you got the meaning? Sir, we can measure or not 0.1 millimeter, which is less than 1 millimeter. Yes, हम लोग नहीं measure कर पाएंगे. We cannot measure anything less than 1 millimeter with this scale because its smallest division is 1 millimeter. We have some other instrument through which we can measure. Sir, through this scale we can measure or not 0.1 millimeter, which is less than 1 millimeter. We cannot measure. We cannot measure. We cannot measure with this scale. Sir, in 1 millimeter there is integers or not, small integers. In between 0 to 1 there is 0.1, 0.2, like this or not. You can have 0.1. You can have still small 1 micrometer. You can have still small 1 nanometer. अब तो सब divisions है हमारे पास, हम कर सकते हैं. हमारे पास instrument भी है वो सब measure करने के लिए. We have all these instruments. Sir is saying in that scale. In this scale, the smallest division is 1 millimeter. So हम इसका least count बोलेंगे कि 1 millimeter है.
हाँ, लिस्ट काउंट का मतलब सिर्फ लिस्ट काउंट का मतलब हम लोग यहाँ समझ रहे हैं. We can have very small divisions. We can have a division where it is 1 nanometer. We can have a division where it is 1 micrometer. ये सब divisions हम लोग के पास है. We have instrument. आप लोग का लैब में भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है. जहाँ one instrument is slide calipers. आप लोग कल एक बार जब स्कूल में जाएंगे तो देख लीजिएगा. सब स्कूल में जाके देख लिया. अच्छा, ग्रेट. स्फेरोमीटर देख लिया आप लोगों ने. स्फेरोमीटर है क्या स्कूल में? Yes, sir. तो स्फेरोमीटर we can measure 0.001 millimeter, very small. ठीक है. तो ये देखिए, ये स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन है 1 millimeter. Okay, this scale has a smallest division of 1 millimeter. ये smallest division जो होगा उसको हम list count कहेंगे. The least count is the smallest division of a scale. इतना तक समझ में आ गया सबको? जी सर. यहाँ तो याद ही रखना है, कुछ नहीं करना है. अभी देखिए कि मैंने जैसा आप लोगों को बताया, we want to measure the length of this rod. Yeah, we want to measure with the help of this scale. तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? One end we will keep at 0 and look at the reading at the of the other end. ठीक है? One end we are keeping at 0 and looking at the length of the other end. Now, आप लोग बताइए इसका लेंथ कितना होगा? एक काम कीजिए, आप लोग अपना चैट ऑन कीजिए और आंसर लिखिए. Yes sir, 6.05 millimeter. आप चैट में आंसर लिखिए और टू एवरीवन मत कीजिए, टू मी कर दीजिए, टू नुमान अहमद कर दीजिए और सब आंसर कीजिए. इसका लेंथ कितना है? ये जो रॉड है और ये स्केल, इसका लेंथ कितना है? पहले आप मत बोलिए, आप चैट में लिखिए. 6.5 sir. अच्छा, क्लासरूम में जो लोग आप लोग तो नहीं कर सकते सर, चैट नहीं आ रहा. 6.5 sir. हाँ, नहीं मुझे ये चाहिए आपका यूनिट. अच्छा, यूनिट मिलीमीटर, यूनिट नहीं लिखने से भी होगा, फटाफट लिखिए. सर ये चैट नहीं आ रहा है, इसलिए सर दिक्कत हो रहा है. क्यों चैट नहीं आ रहा है? चैट तो आ रहा है सबको, बाकी सब ने तो चैट कर रहा है. सबको चैट आएगा, सब ने, बाकी सब ने तो दे रहा है. 6.5. अच्छा ठीक है. ओके ओके. सो बहुत सारे ने दिया है ये, लेकिन मैंने क्या कहा, ये स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है? स्मॉलेस्ट डिवीजन इज 1 millimeter. हाँ, इसका मतलब ये स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 millimeter है. इसका मतलब हम किसी भी चीज 1 millimeter से छूटा इस स्केल से मेजर नहीं कर पाएंगे. You understood? The smallest division of this scale is 1 millimeter. It means we cannot measure anything which is less than 1 millimeter. Okay? इतना तक समझ में आ गया? The smallest division of this scale is 1 millimeter, means we cannot measure anything which is less than 1 millimeter. Now, if you tell 6.5 millimeter, आप लोग जिन सब ने लिखा है 6.5 millimeter means you have measured less than 1 millimeter, which is not possible. समझ में आया? आप लोग ने 6.5 millimeter जो सब लिखा है, इसका मतलब है कि आप लोग ने क्या किया? हाँ, एक आंसर तो सही आ गया, एटलीस्ट एक आंसर सही आ गया. आप लोग जिन्होंने 6.5 millimeter लिखा है वो गलत है. That is wrong, because you cannot measure
less than 1 millimeter. अब जब 0.5 millimeter लिख रहे हैं, that means you have measured less than 1 millimeter. You cannot do that one. You cannot do that one. Okay. Now, in real life, have you seen that 1 millimeter is a very small length? In real life, 1 millimeter is a very small length. आप लोग ने रियल लाइफ स्केल सबने देखा है 1 millimeter is very small. Now if I give this rod and this scale to all of you, if I give this rod and this scale to all of you, 50% of you will measure it to be 6 millimeter and the other 50% will measure it to be 7 millimeter. Okay, if I give this rod and this scale to all of you, 50% of you will measure it to be 6 millimeter and the other 50% will measure it to be 7 millimeter. The question is, which one is correct? Up 6 millimeter लिखिए, 50% will write it 6 millimeter and the other 50% will write it 7 millimeter. Which one is correct? And the answer is both are correct. दोनों correct है. ठीक है? Both are correct. If you write 6 millimeter, 6 millimeter is the correct length. If you write 7 millimeter, 7 millimeter is also the correct length. I hope you understood this much. मैंने क्या बोला कि ये स्केल से ये रॉड का लेंथ आप मेजर करेंगे तो the length you should tell either 6 millimeter or 7 millimeter क्योंकि in between 6 and 7 we cannot measure. In between 6 and 7 there are no divisions. Division नहीं है स्केल में, so we cannot measure. So if you tell 6 millimeter, it is correct. If you tell 7 millimeter, that is also correct. 6 millimeter be correct hai, 7 millimeter is also correct. But you see, if we tell 6 millimeter, are we telling the exact length? आप लोग देखिए, अगर हम 6 millimeter बोल रहे हैं, then we are not telling the exact length. हमने क्या क्या थोड़ा कम बताया इसका length. We have told something less. If we tell 7 millimeter, then also we are not telling the exact length. हमने थोड़ा ज्यादा बता दिया. ठीक है? If we tell 6 millimeter, we are not telling the exact length. हमने थोड़ा कम बता दिया. If we tell 7 millimeter, then also we are not telling the exact length. हमने थोड़ा ज्यादा बता दिया. Okay? But both are correct. So whenever we measure, हम जब भी किसी चीज को मेजर करते हैं हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती. We don't measure the exact quantity. We measure slightly more or slightly less. थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम हम measure करते हैं. That slight more or slight less we get in measurement is called error in measurement. Errors in measurement. Errors in measurement. आपका समझ में आया? Error का मतलब समझ में आया? Yes, sir. हाँ, errors in measurement. It is the difference between true value and measured value of a quantity. That is the difference between true value and measured value of a quantity.
It is the difference between true value and measured value of a quantity. ठीक है, देखिए इसका ट्रू वैल्यू तो 6 और 7 के बीच है, बीच में है, but we cannot measure that. We measure either 6 or 7. So वो जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस को हम एरर कहेंगे। अच्छा, इस स्केल में, इस मेजरमेंट में अगर हम 6 लिखते हैं या 7 लिखते हैं, there will be some error. Whether we write 6 millimeter or we write 7 millimeter, there will be some error. Is that error because of us? क्या ये एरर हमारे वजह से आया है इसमें? No. No. ये एरर हमारा वजह से नहीं आया. This error is not because of us. This error, यहाँ जो एरर आया है in between 6 and 7, ये इसीलिए आया, ये स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द स्केल, स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है उसके वजह से है। तो ये एरर को हम एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। टाइप्स ऑफ एरर, एब्सोल्यूट एरर। Absolute error. ठीक है, यहाँ जो एरर आया है वो that is not because of us. ये एरर इसीलिए आया क्योंकि हमें 1 मिलीमीटर से छोटा कोई डिवीजन नहीं है, इसीलिए ये एरर आया। सो ये एरर को हम एब्सोल्यूट एरर कहेंगे and we write it as delta x. ये एरर को हम एब्सोल्यूट एरर कहेंगे। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है? एक्चुअली ऐसा कुछ समझिए, तो हम नाम ऐसा लिख रहे हैं एब्सोल्यूट एरर, हम डिनोट करेंगे डेल्टा एक्स से, एंड दिस एब्सोल्यूट एरर इज द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। आप ऐसा समझ लीजिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होगा वो लीस्ट काउंट एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। कोई भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो लीस्ट काउंट एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। Okay. Sometimes. समझा नहीं मैंने। हेलो सर। हाँ जी, आप बताइए। सर एब्सोल्यूट एरर नहीं समझ में आया, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज? हाँ, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। You see, we want to measure the length of this rod using this scale. आप लोग ध्यान से सुनिएगा। We want to measure इस रॉड, ये जो रॉड है इसका लेंथ हमको मेजर करना है with the help of this scale. अच्छा, इस स्केल में देखिए जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर का है। स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है 1 मिलीमीटर का है। 1 मिलीमीटर से छोटा कोई भी डिवीजन नहीं है। इसका मतलब हम किसी भी मेजरमेंट इस स्केल से लेंगे वो 1 मिलीमीटर से कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्केल से हम जब इसका लेंथ रिकॉर्ड करेंगे, ये स्केल से जब हम इसका लेंथ मेजर करेंगे तो वो आइदर 6 मिलीमीटर लिखना पड़ेगा या 7 मिलीमीटर लिखना पड़ेगा। We need to write it either 6 millimeter और 7 मिलीमीटर। सॉरी सर, बट आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर कैमरा के सामने आइए सर। हाँ, मैं तो कैमरे का सामने ही हूँ। हाँ सर अभी होगा। ठीक है। ये रॉड का लेंथ जो होगा आइदर 6 मिलीमीटर या 7 मिलीमीटर हम लिखेंगे, आइदर 6 मिलीमीटर और 7 मिलीमीटर। हाँ, आपका माइक अमीनुज्जमान आपका माइक, अमीनुज्जमान आपका, हाँ माइक, अब
लोग का माइक म्यूट रखिए. हाँ, so you see, whenever we measure the length of this rod, it will be either 6 millimeter or 7 millimeter. हम either 6 millimeter बोलेंगे या 7 millimeter बोलेंगे. Now, if we tell 6 millimeter, we are not telling the exact length. अगर हम 7 millimeter बोलते हैं, then also we are not telling the exact length. हाँ, इसका exact length क्या है? In between 6 and 7. लेकिन हम क्या बोलेंगे? Either 6 millimeter or 7 millimeter. Out of these two. So whenever we measure, there is an error. The difference between the measured value and the actual value will be called error. Actually, देखिए हम 6 millimeter. Suppose we tell its length is 6 millimeter. लेकिन वो 6 millimeter से थोड़ा ज्यादा है. तो हम जब बोलेंगे कि 6 millimeter है, मतलब थोड़ा सा error है इसमें. We have some error. Yeah. Okay. अच्छा, अभी एरर जब बोलेंगे हम 3 टाइप्स ऑफ एरर्स पढ़ेंगे. 3 टाइप्स ऑफ एरर पढ़ेंगे. एक एरर होगा जो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द स्केल के वजह से आता है. सपोज यहाँ जो एरर आया है वो हमारा वजह से नहीं है. दैट एरर इज बिकॉज ऑफ द स्केल. अगर यहाँ बीच में 0.5 का होता तो एरर और भी कम आता. So that error which is because of the smallest division of the scale is called absolute error. हाँ, मीनिंग सोचिए. हम लिखेंगे थोड़ा अलग से लिखेंगे. Absolute error का मतलब ये है कि the error which appears because of the smallest division of the scale, that is absolute error. ठीक है? हाँ, you understood that one? Absolute error का मतलब आप लोग का समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मतलब आप लोग का समझ में आना चाहिए. The error which is because of the smallest division of the scale, that is called absolute error. ये मीनिंग है. लेकिन आप लोग मीनिंग नहीं याद रखने से भी चलेगा. डेफिनेशन, एक बार डेफिनेशन याद रख लीजिए. मीनिंग आप याद नहीं रखने से भी चलेगा. जब भी आप लोग को एब्सोल्यूट एरर कितना है पूछेंगे, whenever people ask you how much is the absolute error, आप क्या कीजिए? You write the smallest value of the scale. That is absolute error. Okay, sir. Clear, sir. इसका मतलब देखिए, ये स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन है 1 मिलीमीटर. तो हम इसका एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे 1 मिलीमीटर. कुछ नहीं करना है. आप स्केल का स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना है वो देख लीजिए, वो आपको एब्सोल्यूट एरर दे देगा. हाँ जी, उस्मान अहमद, आपको कुछ पूछना है? सर, ये एब्सोल्यूट एरर का क्या है? मतलब अगर 0.5 से ज्यादा होता है हम तो राउंड ऑफ कर ही लेते हैं. या 0.5 के नीचे होता है वो तो आप मैथमेटिक्स में करते हैं. हाँ, 0.5 से यहाँ पे भी हो जाएगा तो नहीं, यहाँ हम नहीं करेंगे ना. यहाँ हम नहीं करते. हम वो मेजर ही नहीं कर रहे. 0.5 से मतलब दो डिवीजन के बीच जो है वो हम मेजर ही नहीं कर रहे. ठीक है? हाँ, फिजिक्स में क्या है कि आप एग्जैक्ट लेंथ मेजर नहीं कर रहे. राउंडिंग ऑफ इज अ डिफरेंट थिंग. वो हम मैथमेटिक्स में करते हैं. फिजिक्स में भी हम करेंगे राउंडिंग ऑफ. लेकिन क्या हम मेजर जब भी मेजर कर रहे हैं तो उसमें एरर आएगा, क्योंकि हम एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी मेजर नहीं कर पा रहे. राउंडिंग ऑफ मतलब क्या है? हमारा पास एरर है. हाँ सर. राउंडिंग ऑफ मतलब ही है हमारे पास एरर है. वो एरर कितना है, ठीक है, वही हमको निकालना है. सो व्हाट यू विल रिमेम्बर, आप लोग इजी वे में याद रखिए. यू रिमेम्बर इट इजीली, very easily, that if you are given any scale, कोई भी स्केल आप लोग को दिया है, उसका जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होगा, सबसे छोटा डिवीजन होगा, वो एब्सोल्यूट एरर होगा. ओके? कोई भी स्केल आप यूज कर रहे हैं, उसमें जो सबसे छोटा डिवीजन होगा वही एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर को कभी कभी लीस्ट काउंट एरर भी कहते हैं. Sometimes absolute error is also called least count error.
ठीक है, तो आप लोग को क्या याद रखना है, आप लोग को क्या याद रखना है, एब्सोल्यूट एरर जब भी पूछा जाएगा आप लिखेंगे डेल्टा एक्स से हम डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स, ये ट्रायंगल मत भूलिए, डेल्टा एक्स। व्हेनेवर यू आर आस्क्ड एब्सोल्यूट एरर विल राइट डेल्टा एक्स, और इसका वैल्यू कितना होगा, द वैल्यू विल बी स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द स्केल। इतना याद रखना है, आप लोग इतना याद रख सकते हैं? जी सर। ओके ओके, इतना याद रखने से हो जाएगा। Next, one more we define. Number 2 is called relative error. सर थोड़ा आगे आइए, आवाज नहीं आ रहा। Number 2 is called relative error or fractional error. ठीक है, नंबर 2 is called relative error or fractional error. And how we define it? Relative error or fractional error? It is absolute error divided by measured value. Okay, relative error or fractional error. It is absolute error divided by measured value. Here definition here. Absolute error divided by measured value. Relative error or fractional error. It is absolute error divided by measured value. सर measured value क्या है सर? Measured value suppose इसका लेंथ हमने 6 मिलीमीटर मेजर किया, वो मेजर्ड वैल्यू हो गया। जी सर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर यहाँ 1 मिलीमीटर हुआ, इन दिस एग्जांपल एब्सोल्यूट एरर 1 मिलीमीटर हुआ, दैट 1 मिलीमीटर इज द एब्सोल्यूट एरर। मेजर्ड वैल्यू कितना है, सपोज हमने 6 मिलीमीटर दिया मेजर्ड वैल्यू, वो मेजर्ड वैल्यू हो जाएगा। सर जी, अगर 7 मिलीमीटर लेते हैं मेजर्ड वैल्यू, हाँ तो 7 मिलीमीटर इज द मेजर्ड वैल्यू, जो भी आप लिखेंगे वही मेजर्ड वैल्यू हो जाएगा। तो ये एरर आपकी वजह से आएगा। जी सर। एब्सोल्यूट एरर क्या है, स्केल की वजह से आ, हाँ, और ये स्केल हमेशा सेम ही रहेगा, सबके लिए सेम है। सपोज इस स्केल का है 0 to 1 is 1 मिलीमीटर, सबके लिए 1 मिलीमीटर आ जाएगा। लेकिन ये रिलेटिव एरर ये आपकी वजह से आएगा। आप 6 मिलीमीटर मेजर्ड वैल्यू लिखेंगे तो आपके लिए डिवाइडेड बाय 6 होगा, अगर आप 7 मिलीमीटर लिखते हैं तो 7 डिवाइडेड बाय 7। जी सर। समझ में आया? यस सर, यस सर। हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली एब्सोल्यूट एरर हम लिखेंगे डेल्टा एक्स, एब्सोल्यूट एरर इज डेल्टा एक्स, मेजर्ड वैल्यू एक्स, डेल्टा एक्स बाय एक्स। ठीक है, मैथमेटिकली एब्सोल्यूट एरर इज डेल्टा एक्स, मेजर्ड वैल्यू इज एक्स, डेल्टा एक्स बाय एक्स। और एक है परसेंटेज एरर। थर्ड वन में ऊपर लिख रहा हूं, परसेंटेज एरर। थर्ड वन में ऊपर में लिख रहा हूं परसेंटेज एरर। सर प्लीज कैमरे के सामने आइए, आपकी बात नहीं सुनाई। थर्ड वन में ऊपर में लिखा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या है, हम एब्सोल्यूट हम रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करने से परसेंटेज एरर आ जाएगा। वेरी सिंपल, हमको क्या करना है, सिर्फ रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, परसेंटेज एरर में क्या करना है,
सिर्फ रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज एरर आ जाएगा। सर इसका आंसर जो आएगा ना, ये कौन सा यूनिट में आएगा सर? अब मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए पहले देखिए हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, आप लोग देखिए कि जब भी किसी चीज को हम मेजर करते हैं, whenever we measure any quantity there will be an error, ठीक है। in physics whenever we measure any quantity there will be an error. 3 types of error हम यहाँ पढ़ेंगे। One is absolute error. ये एब्सोल्यूट एरर ये स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द स्केल के वजह से होता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन। और हम इसीलिए ऐसा याद रखेंगे कि किसी भी स्केल का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होगा वो एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। सपोज इस स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन है 1 मिलीमीटर, सो एब्सोल्यूट एरर इज 1 मिलीमीटर। नेक्स्ट वन इज रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। इसको क्या करेंगे हम, एब्सोल्यूट एरर को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करेंगे। सो इन स्केल में एब्सोल्यूट एरर 1 मिलीमीटर और मेजर्ड वैल्यू कितना होगा। अगर हम 6 मिलीमीटर मेजर करते हैं तो 6 मिलीमीटर, अगर आप बोलते हैं लाइक 7 मिलीमीटर तो 7 मिलीमीटर मेजर हो जाएगा। जो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्या मेजर कर रहे हैं। लेकिन एब्सोल्यूट एरर विल बी सेम फॉर ऑल, सारे का सारे सबके लिए सेम होगा। और परसेंटेज एरर क्या है, सिर्फ फ्रैक्शनल एरर को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फ्रैक्शनल एरर जो है डेल्टा x बाई x, इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। अच्छा अभी यूनिट देखिए, एब्सोल्यूट एरर इज डेल्टा x, मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन। जो स्केल का यूनिट होगा वही एब्सोल्यूट एरर का यूनिट होगा। Okay, so absolute error has a unit. आप लोग देख लीजिए, absolute error has a unit. You note it that absolute error has a unit. और क्या यूनिट होगा, जो स्केल का यूनिट होगा वही होगा। यहाँ देखिए रिलेटिव एरर में, सपोज इस स्केल में एब्सोल्यूट एरर मिलीमीटर, x is also millimeter, cancel. Relative error has no unit. Percentage error also has no unit. So relative error and percentage error has no unit. Absolute error has a unit. Relative error and percentage error has no unit. सर रिलेटिव एरर में यूनिट क्यों नहीं है? उसमें तो मिलीमीटर है ना। मिलीमीटर बाय मिलीमीटर कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा x देखिए 1 मिलीमीटर, x is 6 मिलीमीटर, so मिलीमीटर बाय मिलीमीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल लिखते हैं। लेट्स राइट एन एग्जांपल। सर यहाँ डेल्टा का मान क्या होगा? डेल्टा x इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा x से डिनोट करते हैं। जी सर। Whenever we write delta x, delta don't have a value. Delta x is called absolute error. ठीक है, एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा x से डिनोट करते हैं। ठीक है, यस सर, समझ गया। थैंक यू सर। ओके, एक प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कीजिए। एक प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कीजिए। यू राइट द प्रॉब्लम। द टाइम ऑफ 25 ऑसिलेशंस। आप लोग एक प्रॉब्लम लिखिए। द टाइम ऑफ 25 ऑसिलेशंस, the time of 25 oscillations. Oscillation पता है? oscillation कोई भी चीज अगर ऐसे ऐसा मूव करता है वो oscillation होता है। oscillation, the time of 25 oscillations of a pendulum. The time of 25 oscillations of a pendulum is measured to be 20 seconds. The time of 25 oscillations of a pendulum is measured to be 20 seconds.
The time of 25 oscillations of a pendulum is measured to be 20 seconds. Okay, the time of 25 oscillations of a pendulum is measured to be 20 seconds. If the least count of the stopwatch is 0.5 seconds. If the least count of the stopwatch is 0.5 seconds, then calculate number one, absolute error. If the least count of the stopwatch is 0.5 seconds, if the least count of the stopwatch is 0.5 seconds, then calculate number one, absolute error, number two, fractional error, and number three, percentage error. Okay. The time of 25 oscillations of a pendulum is measured to be 20 seconds. If the least count of the stopwatch is 0.5 seconds, then calculate number one, absolute error, number two, fractional error, and number three, percentage error. आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, आराम से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन का समझिए पहले। ओके आप लोग ठीक है नकीबुर आप चेक कीजिए एक बार। नकीबुर आपका आंसर चेक कीजिए एक बार। और एब्सोल्यूट एरर का यूनिट होगा, आप लोग यूनिट लिखिए, एब्सोल्यूट एरर का जो यूनिट है यूनिट लिखिएगा। वेरी सिंपल देखिए, इफ द लिस्ट काउंट ऑफ द स्टॉपवॉच, लिस्ट काउंट का मतलब सबसे छोटा डिवीजन, और हम वही को एब्सोल्यूट एरर मानेंगे, ठीक है। सो एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू क्या होगा? वेरी सिंपल देखिए, वेरी सिंपल, आप लोग को कुछ नहीं करना है। लिस्ट काउंट ऑफ द स्टॉपवॉच इज 0.5 सेकंड, इसका मतलब क्या है? ये एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू कितना आएगा? एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा? 0.5 सर, 0.5 सेकंड। 0.5 सेकंड। कुछ नहीं करना, इतना इजी है, वेरी वेरी इजी।
जो एब्सोल्यूट जो डिस्काउंट दिया होगा वही एब्सोल्यूट एरर है। नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट वाला फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर का डेफिनेशन क्या है? एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। आप लिखिए एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड। फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर दिया है 0.5 और मेजर्ड वैल्यू कितना दिया है? पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी, देखिए ये देखिए, the time of 25 oscillations of a pendulum is measured to be 20 seconds. measured value हो गया 20 seconds। ठीक है, measured value is 20 seconds। 20 seconds। सर 1/40 हो गया। हाँ 1/4। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, सेकंड इसका कोई सर यूनिट इसका नहीं तो कोई यूनिट नहीं है, 1/40 हो गया सर। सर 0.025। हाँ कुछ भी है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जी सर। यहाँ देखिए ये 25 ऑसिलेशंस जो दिया हुआ है उसमें कोई एरर होगा क्योंकि वो हमने मेजर नहीं किया। ये 25 ऑसिलेशंस आया परसेंटेज एरर आया 10/4। 25 ऑसिलेशंस जो दिया है वो हमने मेजर नहीं किया, इसलिए इसमें कोई एरर नहीं है, वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। सर सुनाई नहीं दे रहा है प्लीज सर। हाँ सर अभी बोलिए सर प्लीज। ये जो 25 ऑसिलेशंस यहाँ है वो हमने मेजर नहीं किया। अगर हम मेजर नहीं करते हैं तो उसमें कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, 25 ऑसिलेशंस हमने मेजर नहीं किया, इसमें एरर नहीं आएगा। 20 सेकंड हमने मेजर किया, सो 20 सेकंड में एरर आएगा। और परसेंटेज एरर में हम क्या करते हैं? हम फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई करते थे, दैट इज परसेंटेज एरर। वी मल्टीप्लाई फ्रैक्शनल एरर बाय 100 टू गेट परसेंटेज एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर में क्या है कि फ्रैक्शनल एरर को हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे, वो परसेंटेज एरर हो जाएगा। सो कितना आया सर? आई थिंक 2.5। हाँ 2.5। ठीक है, 2.5%। ये प्रॉब्लम आप लोग का समझ में आया? किसी को नहीं समझ आया आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्टी है इस प्रॉब्लम में, आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। ओके, इकरामुल हुसैन आपका कुछ प्रॉब्लम है, आप बताइए क्या? आप आपका वीडियो ऑन कीजिए पहले। इकरामुल हुसैन, और किसी को है? और किसी को प्रॉब्लम है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर परसेंटेज एरर में परसेंटेज में आना चाहिए क्या वो लास्ट वाला आंसर? हाँ परसेंटेज में आना चाहिए, परसेंटेज एरर में परसेंटेज में ही आना चाहिए। सर हमने उसको लंबा कर दिया, 1/4 आया, 10/4 आया। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, 10/4 मतलब 2.5, 10/4% आप लिख सकते हैं। यू कैन राइट 10/4%। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ 10/4% आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ दिस सरवार आपने थोड़ा गलत कर दिया। आप आपका कैलकुलेशन चेक कर लीजिए फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर का। हाँ किसी एक ने तो हाथ ऊपर किया था, कौन था? मैं भूल गया, नाम भूल गया। हाथ कौन ऊपर किया था? आप आपका चेहरा दिखाइए और प्रॉब्लम बताइए। शर्मा ये मत, यू शुड नॉट बी अशेम्ड, you should not be ashamed. Okay, once again you see ये questions दिया हुआ है कि time of 25 oscillations of a pendulum is measured to be 20 seconds. Least count of stopwatches 0. सर कैमरा के सामने आइए सर, सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं कैमरा का सामने ही हूँ मैं सर, इधर से होता है सर, आप इस साइड से होता है।
Yes, सर एक एक्स्ट्रा माइक यूज कीजिए सर, अच्छा होगा। हाँ, एक्स्ट्रा माइक तो हम यूज करेंगे। Okay, so what you see, absolute error कितना होगा? Absolute error is always equal to least count. Least count जितना होगा वही absolute error होता है। So least count यहाँ दिया हुआ है 0.5 सेकंड, इसका मतलब absolute error 0.5 सेकंड। Fractional error is delta x by x. Fractional error is delta x by x. Delta x is absolute error. X is measured value. Absolute error is 0.5 second. Measured value दिया हुआ है 20 second. 0.5 by 20. और परसेंटेज एरर क्या करेंगे? हम सिर्फ फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो परसेंटेज एरर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देने से परसेंटेज एरर हो जाता है। और एक प्रॉब्लम आप लोग ट्राई कीजिए, to understand better. हाँ, एक प्रॉब्लम आप लोग ट्राई कीजिए। Length of a rod, आप लोग ट्राई कीजिए। Length of a rod is measured to be length of a rod is measured to be आपका माइक म्यूट कीजिए। हाँ, length of a rod is measured to be 20.03 centimeter. Okay, length of a rod is measured to be 20.03 centimeter. Estimate number 1 absolute error, number 2 fractional error, number 3 percentage error. सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। The length of a rod is measured to be 20.03 centimeter. Estimate absolute error, fractional error, and percentage error. It's very simple, बहुत simple है। Length है 20.03 centimeter। ठीक है, लेंथ इज 20.03 सेंटीमीटर। आप अभी गेस कीजिए,
हाँ, आप अभी गेस कीजिए कि एब्सोल्यूट एरर कितना हो सकता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या हो सकता है, गेस कीजिए। 1 centimeter. 0.01 centimeter. 0.01 सेंटीमीटर आप गेस कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट डिवीजन होगा 0.01 सेंटीमीटर। हम जब मेजर करेंगे 20.01, 20.02, 20.03 ऐसा जा सकता है। So we can guess that the smallest division can be 0.01 centimeter. So absolute error हो जाएगा 0.01 centimeter. इतना तक समझ में आया आप सबको? Have you understood this much? Yes, sir. नहीं समझा सर। Sir, repeat it, sir, please. We cannot understand. Sir, repeat it, please. Okay. You see, you listen carefully. Listen care. आप ध्यान से सुनिए। आप लोग अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे, क्लासरूम में जो बैठे आप लोग बात कर रहे हैं आपस में, तो कैसा सुनेंगे, कैसा समझेंगे? जो सब क्लासरूम में बैठा है, you are talking amongst yourselves. And then you cannot understand. You see, listen carefully. Length कितना दिया हुआ है? 20.03 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ दिया है 20.03। आप गैस कर सकते हैं स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना होगा, सबसे छोटा डिवीजन कितना होगा? 0.01। सबसे छोटा डिवीजन कितना होगा? 0.01 सेंटीमीटर। वही एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0.01 हो सकता है, 0.02 हो सकता है, 0.03 है, ऑलरेडी है। So the smallest division can be 0.01 centimeter. So the absolute error will be 0.01 centimeter. ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Okay, ठीक है। नेक्स्ट क्या निकलना है हम लोग को? फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर कैसा लिखते हैं? एब्सोल्यूट एरर बाय मेजर्ड वैल्यू 1/2030। हाँ, एब्सोल्यूट एरर बाय मेजर्ड वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर है 0.01 बाय मेजर्ड वैल्यू 20.03। इसका यूनिट नहीं होगा। दिस डजंट हैव अ यूनिट। फ्रैक्शनल एरर का कोई यूनिट नहीं होता है। Yes, sir. और लास्ट वाला परसेंटेज एरर हमको निकालना है, विल मल्टीप्लाई बाय 100। सिर्फ फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको परसेंटेज एरर आ जाएगा। हाँ सर। ठीक है, सिर्फ फ्रैक्शनल एरर को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज एरर आ जाएगा। सर, हाँ जी बोलिए। क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर पहले जब हमने सर वो आपने एक दिखाया था मिलीमीटर का स्केल सर, सर उसमें तो हमने सर 6.5 मिलीमीटर नहीं लिखा था सर, इधर फिर सर 20.03 सेंटीमीटर क्यों लिख रहे हैं सर? हाँ। नहीं, वो स्केल में क्या है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 मिलीमीटर था, इसलिए 6.5 मिलीमीटर नहीं लिखा है। ठीक है, वो जो स्केल था उसमें स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 मिलीमीटर था। ये जो स्केल से मेजर किया इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन 0.1 मिलीमीटर है, तो 0.01 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मिलीमीटर है। जी सर। ठीक है, ये अलग एक स्केल है जो स्केल का डिवीजन बहुत छोटा है, 1 मिलीमीटर से भी कम है, 0.01 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है सर। अगर हमारे पास ऐसा कोई स्केल है, सपोज स्फेरोमीटर, आप लोग ने देखा है? नहीं सर। यस सर। आप लोग एक बार स्कूल में जाइए, जिन सब ने नहीं देखा है, स्कूल में है। यस सर, देखा। हाँ, स्कूल में सार है, जाके एक बार स्फेरोमीटर देख लीजिए। उसमें क्या है, और भी छोटा सा डिवीजन है,
you can measure still smaller value. हाँ, तो आप अगर स्पेरोमीटर यूज करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं। जी सर। सर अच्छा, कैलकुलेशन में देखिए, यहाँ जब कैलकुलेट करेंगे आप, Yes, sir. जब कैलकुलेट करेंगे तो आप अगर ऐसा डायरेक्टली कैलकुलेट करने जाएंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। नीट में हर क्वेश्चन में आपको सिर्फ 1 ही मिनट मिलता है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और सॉल्व करना है, दोनों। तो आप ऐसा कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सर, आप क्या करेंगे, आप अप्रोक्सीमेट कर देंगे। ये देखिए 03 बहुत छोटा है, 20.03 इज वेरी स्मॉल, इग्नोर 0.03। अगर ये 0.03 आप इग्नोर करते हैं तो क्या आएगा, 0.01/20 into 100 आ जाएगा। समझ में आया? जब हम एग्जाम में कैलकुलेट करेंगे, एग्जाम में तो हमको इजी तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। वी वांट टू कैलकुलेट इट क्विकली, सो क्या करेंगे, हम थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ टाइप कर लेंगे। 0.03 हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो बहुत छोटा है कंपेयर टू 20। तो क्या आएगा, 0.01/20 into 100 कितना आएगा, 1/20। ठीक है, 0.01/20 into 100 ऐसा आ जाएगा। yes, sir. तो ये कैलकुलेट इजी हो जाएगा, 25.05% हो जाएगा। Yes, sir. सर एक बात सुनिए। हाँ जी, बताइए सर। हाँ जी सर देखिए, हमारे यहाँ पे तो हाँ एब्सोल्यूट एरर ऑलरेडी 0.01 सेंटीमीटर है, तो हमारा यहाँ पे जो छोटा एरर लगेगा। जीरो कौन छोटा, मैं समझ में नहीं आया। ये 0.3 क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, हाँ, एब्सोल्यूट एरर तो हमेशा छोटा ही होता है। हाँ सर, तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी हम यहाँ पे दिया हुआ है कि एब्सोल्यूट एरर है 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो एरर लगेगा तो इससे भी छोटा होगा ना जो एरर लगेगा यहाँ पे। कहाँ पे? आप वीडियो ऑन कीजिए, एक बार वीडियो ऑन कीजिए और आपका कॉपी में दिखा। थोड़ा बहुत नेटवर्क का इश्यू चल रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। आप कौन सा बात कर रहे हैं, कौन? ये 0.01 सेंटीमीटर ये एब्सोल्यूट एरर है, वो छोटा है, ये आप बोल रहे हैं? अच्छा, और क्या आप 20.03 के बारे में बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, सिर्फ एब्सोल्यूट एरर के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा, एब्सोल्यूट एरर छोटा है, यही बोल रहे हैं आप? हाँ सर। हाँ, तो हमारा एक्चुअली इंटेंशन क्या होता है, our intention is to make the errors as small as possible. ठीक है, हमारा इंटेंशन हमेशा यही रहता है कि हम एरर को जितना से जितना छोटा कर सके उतना करेंगे, छोटा करेंगे हम। अच्छा, आप लोग एक काम कीजिए, पहले हम लोग ने 3 डेफिनेशन पढ़ा था, एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर। आप तीनों डेफिनेशंस एक बार पढ़ लीजिए फटाफट। आप लोग ये तीनों डेफिनेशन पढ़ लीजिए एक बार। फटाफट एक बार तीनों डेफिनेशन पढ़ लीजिए। और ये जो 2 प्रॉब्लम आप लोग ने सॉल्व किया, दोनों प्रॉब्लम का पहले एक बार क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद इसका सॉल्यूशन एक बार पढ़ लीजिए। Yes, sir. हाँ, दोनों का सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए, दोनों प्रॉब्लम का। कोई डिफिकल्टीज है?
कोई डिफिकल्टी है देख लीजिए आप। नो सर। नहीं सर। नो सर। नो सर। ओके ओके, वेरी गुड। Okay. Suppose ये एक रॉड है, सपोज दिस इज अ रॉड, उस एक रॉड है हमारे पास जिसका एक्चुअल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ओके, एक रॉड है हमारे पास जिसका एक्चुअल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और दो आदमी ने इसका लेंथ मेजर किया। दो आदमी ने इसका लेंथ मेजर किया, ए और बी। ए ने इसका लेंथ मेजर किया 19 सेंटीमीटर और बी ने इसका लेंथ मेजर किया 21.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा। एक रॉड है जिसका एक्चुअल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। दो स्टूडेंट ने इसका लेंथ मेजर किया। ए ने मेजर किया 19 सेंटीमीटर और बी ने मेजर किया 21.5 सेंटीमीटर। अगर हम आपको पूछेंगे कि which measurement is more accurate, ए और बी में से कौन सा मेजरमेंट मोर एक्यूरेट है, आप क्या बताएंगे? सर स्केल कौन सा यूज किया था? कोई भी स्केल यूज किया? 21.5 सेंटीमीटर सर। कोई भी स्केल यूज किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके सर। तो 19 सेंटीमीटर सर आंसर आई थिंक 19 सेंटीमीटर सर। सर Sir, if the scale have the least count, that is centimeter, then 19 will be correct. सर बी। Sir, 21.5. सर बी 21.5। अच्छा, दोनों ही करेक्ट। नहीं फिजिक्स, आप फिजिक्स भूल दोनों ही जाइए। करेक्ट। फिजिक्स भूल जाइए, फिजिक्स भूल जाइए। यू फॉरगेट अबाउट, जस्ट फॉरगेट अबाउट फिजिक्स। ये देखिए, आप फिजिक्स में मत जाइए। ये ट्रू लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और दो स्टूडेंट ने मेजर किया। स्टूडेंट ए ने मेजर किया 19 सेंटीमीटर और स्टूडेंट बी ने मेजर किया 21.5 सेंटीमीटर। आप फिजिक्स पूरा भूल जाइए कुछ टाइम के लिए। डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंस से आप बोलिए कि कौन सा मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है, व्हिच मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट। Sir, 19 centimeter. सर 19 सेंटीमीटर। 19 सेंटीमीटर हमारा डे टू डे लाइफ के हिसाब से 19 सेंटीमीटर इज मोर एक्यूरेट। व्हाई इट इज मोर एक्यूरेट? 19 सेंटीमीटर ज्यादा एक्यूरेट हो गया। व्हाई इट इज मोर एक्यूरेट? Because it's more closer to 20 centimeter. Because it is nearer to true value. Yes sir. So if a measurement, अगर एक मेजरमेंट ट्रू वैल्यू का पास होता है मतलब एरर लेस होगा। सर इसमें अगर आप एरर देखिएगा 20 सेंटीमीटर लेंथ होना चाहिए, इसमें मेजर किया 19 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर का एरर है। इसमें अगर देखिएगा लेंथ होना चाहिए था 20 सेंटीमीटर, ये स्टूडेंट ने मेजर किया 21.5, सो लेंथ एरर कितना हुआ 1.5 सेंटीमीटर। स्केल कोई कुछ भी यूज करे, स्केल के ऊपर डिपेंड नहीं है ये, ठीक है। तो इफ एरर इज लेस, हम उस मेजरमेंट को मोर एक्यूरेट बोलेंगे। इट डजंट डिपेंड ऑन स्केल। ओके, इफ एरर इज लेस द मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट। तो हम एक टर्म डिफाइन करेंगे एक्यूरेसी। सर एक क्वेश्चन है।
एक्यूरेसी। बोलो टर्म डिफाइन करेंगे एक्यूरेसी। सर जी सर अगर 21.5 सेंटीमीटर की जगह अगर 21 सेंटीमीटर डिफाइन किया हो तो सर कौन सा सही होता? तो दोनों इक्वली एक्यूरेट होता। सर दोनों ही सही होता तब। सपोज सी। जी सर। सी मेजर 21 सेंटीमीटर, डी मेजर 22 सेंटीमीटर। जी सर। सी मेजर 21 सेंटीमीटर, डी मेजर 22 सेंटीमीटर। तो क्या है देखिए, ए और सी दोनों का एक्यूरेसी सेम है, क्योंकि दोनों में एरर 1 सेंटीमीटर का आ रहा है। यस सर। जी सर। ए और सी में देखिए दोनों का एरर 1 सेंटीमीटर है, दोनों का एक्यूरेसी सेम है, इसका मतलब दोनों का एक्यूरेसी सेम है। बी का एक्यूरेसी थोड़ा कम है क्योंकि उसमें एरर ज्यादा आ रहा है। जी सर। बी में एरर ज्यादा आ रहा है, यस सर। यस उसका एक्यूरेसी थोड़ा कम है। डी में देखिए एरर मैक्सिमम आ रहा है। जी सर। उसका मतलब उसका एक्यूरेसी सबसे कम है। ओके सर। समझ में आया आपको? जी सर। एक्यूरेसी का मतलब समझ में आया? जी सर। जी सर। अच्छा, डेफिनेशन तो हम लिखेंगे, आपको पहले समझ में आना चाहिए। देखिए ए और सी दोनों का एक्यूरेसी सेम है। यस सर। अगर सपोज E, another one, suppose E measures 20.5 सेंटीमीटर, सपोज यार, और मैं आप लोग को पूछता हूँ कि कौन सा मेजरमेंट मोस्ट एक्यूरेट है, मोस्ट एक्यूरेट, आप क्या बताएंगे? सर E। हाँ E। E सर E। मोस्ट एक्यूरेट है E का। यस सर। ये क्यों मोस्ट एक्यूरेट हो गया? क्योंकि इसका एरर कम है। एरर है सर। If error is less, it is more accurate. If error is more, it is less accurate. So किस मेजरमेंट A, B, C, D ये 5 मेजरमेंट में कौन सा मेजरमेंट है लीस्ट एक्यूरेट? 22। क्योंकि इसमें एरर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप एक्यूरेसी का डेफिनेशन देखिए, आप लोग एक्यूरेसी का डेफिनेशन देखिए। You write the definition of accuracy. यस सर। It is a measure of। सर कैमरा के सामने आइए सर, थोड़ा सामने आइए सर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लिखिए, it is a measure of। ये ठीक है? यस सर। यस सर। जी सर। देखिए, it is a measure of। It is a measure of how close it is a measure of how close आप लोग को बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, डेफिनेशन लिख सकते हैं। It is a measure of how close the measured value is to the true value of the quantity. Yes, sir. It is a measure of how close the measured value is to the true value of the quantity.
एक एग्जांपल भी आप लिख के रख दीजिए समझने के लिए, क्योंकि आप तो कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। यस सर। जी सर, दे दीजिए सर। हमेशा रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ दिन के बाद भूल जाएंगे। यस सर। जी सर। ये एग्जांपल के हिसाब से आप लिख रखिए। ये एग्जांपल लिख के रख दीजिए, तो बाद में आप जब पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और फिजिक्स में क्या है कि आप हमेशा रिवाइज करते रहिए, नहीं उनसे आप लोग भूल जाएंगे। यस सर। हाँ, हमेशा रिवाइज करते रहिए, नहीं उनसे आप भूल जाएंगे। तो सर ये 20.5 कैसा होगा? क्योंकि इसमें एरर सर एब्सोल्यूट सर यहाँ अगर एब्सोल्यूट एरर आया तो 20.5 तो नहीं होगा ना सर? ए और सी करेक्ट हो जाएगा। एक्यूरेसी में एब्सोल्यूट एरर नहीं आएगा, ठीक है? एक्यूरेसी में एब्सोल्यूट एरर नहीं आता है। एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि जो एक्चुअल वैल्यू है उसका कितना क्लोज है मेजर्ड वैल्यू। आप कोई भी स्केल यूज करते हैं, ये जो स्केल आपने यूज किया इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन है 1 सेंटीमीटर, इसका स्मॉलेस्ट डिवीजन है 0.1 सेंटीमीटर। सर सर इसमें एब्सोल्यूट एरर नहीं आता है क्या सर? नहीं, एक्यूरेसी में हम एब्सोल्यूट एरर कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर हर मेजरमेंट के लिए सेम हो सकता है। ओके सर। हाँ, किसी भी एक स्केल आप यूज कीजिएगा, सपोज ए मिलीमीटर स्केल यू आर यूजिंग, यू मेक एनी मेजरमेंट, द एब्सोल्यूट एरर विल बी 1 मिलीमीटर ओनली, ठीक है? इफ यू आर यूजिंग ए मिलीमीटर स्केल, एनी मेजरमेंट यू मेक, एब्सोल्यूट एरर विल बी 1 मिलीमीटर। तो उसमें से हम एक्यूरेसी का कुछ भी पता नहीं होगा। एब्सोल्यूट एरर डू नॉट गिव अस एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। आप नोट कीजिए, कहीं पे भी नोट करके रख दीजिए। एब्सोल्यूट एरर डू नॉट गिव अस एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। Fractional error and percentage error gives us accuracy. If fractional error or percentage error is less, accuracy is more. आप ये नोट कीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट आप लोगों ने याद किया। हाँ, आप नोट कीजिए, all of you note this point, आप लोग नोट कीजिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। Absolute error does not give us accuracy. नोट कीजिए, absolute error, नोट नंबर 1, नोट कीजिए। बाद में क्या लिखा? पॉइंट नंबर 1 लिखिए, एब्सोल्यूट एरर डज नॉट गिव अस एक्यूरेसी।
Yeah, note कीजिए. Absolute error does not give us accuracy. Note point number 1. Absolute error does not give us accuracy. And point number 2. Point number 2, आप लोग note कीजिए. Point number 2. If a relative error Point number 2, if relative error and percentage error is less, then accuracy is more. Sir, regarding number 2, you give an example, sir. Okay, any measurement you take, if error is more, accuracy will be less. So in this example only, the example we have written. This example have absolute. What you told? This question does not have absolute error, so we need to find it. Then we need to find percentage error and relative error. Or say as an example. Actual length is 20 centimeter. L1 is 19 centimeter. Well, let me make it. Actual is 21 centimeter. Actual, this is actual. As an example, actually it's 21 centimeter. L1 it's 20 centimeter. L2 is 19 centimeter. What is the error in this measurement? In this measurement, what is the error? Sir, 1. 1, sir. 1 centimeter. In this measurement, what is the error? 2 centimeter. 2 centimeter. Percentage error. In this case, 1 by 20 to 100%. Yes, sir. In this case, 2 by 19. Yes, sir. In this measurement, L1, 1 by 1 centimeter is there, 1 by 20 to 100. This one, 2 centimeter is there, 2 by 19 is 1. Where error is more? Percentage error. If it is 5%, 25 are 100, 5%. Yeah. Here, it will be around more than 10% if you calculate. Yes, sir. Yes, sir. That Yes, means sir. it is less accurate, this is more accurate. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, sir. And one more definition. Quickly we will write one more definition. Yes, sir. Suppose length of a rod, two different people measure. One is 20.3 centimeter. Suppose length of a rod, two people measure. One is 20.3 centimeter, and another one is 20.25 centimeter. Which one is more accurate? L1. L2, sir.
3.3, sir. L2, sir. Well, actually, we don't know. Sir, no, Because, I you know, if the actual length is 21 centimeter, you see, if the actual length is 21 centimeter, then one will be more accurate. Yes, sir. Huh? 20.3. If the actual length is 21 centimeter, one will be more accurate. And if the actual length is 20 centimeter, two will be more accurate. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If two measurements are given, then actually we cannot tell which one is more accurate. Yes, sir. Which one is, we cannot tell. But you see, in which case we are measuring smaller value? 2 cases. L1 or L2? In which L2, case we are sir. measuring smaller value? L2. L2, sir. L2. Smaller value. Yes. So if we measure smaller value, means the least count is also small. Yes, sir. Yes, sir. If least count is small, least count of the instrument is small, then it is called, that measurement is called precise. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Precision. This definition will like this definition. P-R-E-C-I-S-I-O-N. Precision. Meaning you understood. Meaning you understand like this, that if Yes, sir. least count is small, then it is more precise. Okay. Meaning is if least count is small, then it is more precise. Okay. Definition you write. Definition you write. Definition you write. Precision. Definition you write. It tells us that's what resolution. सर सुना नहीं दे रहा सर. साउंड नहीं आ रहा है सर. ओके सर. आप लोग को प्रिसिशन का मतलब समझ में आ गया? यस ये सर. एग्जांपल देखिए. Yes, sir. यहाँ 0.01 सेंटीमीटर आप मेजर कर रहे हैं. ये मोर प्रिसाइज होगा इसमें से 0.1 सेंटीमीटर. तो आप जितना छोटा मेजर करेंगे, जितना स्मॉलर द लीस्ट काउंट, मोर प्रिसाइज इज द मेजरमेंट. ठीक है? Okay, we'll stop here today. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir.